my dear students, welcome back to my class Birds of Wisdom. So today in this class I am going to explain you the poem Wind. The poem has been taken from class 9th English book CBSE Beehive. The poem has been originally composed in Tamil language by Subramaniam Bharati, that has been translated by A.K. Ramanujan. So the complete poem is a personified poem in which the poet is actually talking with the wind. So we can say personified. The poem is completely in the form of conversation, and the poem is divided in two parts. In the first part, the poet is conversing or talking with the wind, and in the next part the poet is talking with the readers directly. If the wind is not listening to him, then he feels that I know that I am talking to the wind, I am giving some instructions to the wind, but I know it very well that wind is not going to listen to me. But O readers, you must try to listen to me and understand me how to avoid that harsh winds. Harsh wind, the poet is actually symbolizing the wind with the adversities of our life. So that is why indirectly the poet is guiding to the readers that we must be strong enough to avoid such kinds of adversities, such kinds of blows of winds that try to attack our life, try to finish our life. So it is better, and one more important thing he is saying that yes, you must be very much strong, but with that you should be friend with the wind. That means if you get habitual with the wind, with the strong blows of winds, you will be able to lead a very happy life, because those adversities of your life will be your friend, and obviously if they are your friends, you will not to feel that much hard to adjust with the adversities of our lives. If we notice with a technical point of view, the poem is a very good example of modern poetry. The complete poem has been composed in free verse, means there is no rhyming scheme, there are no equal lines. The complete poem has been composed in unrhyming and unequal lines. You will find no rhyming scheme in this poem, no word is matching with any another word. So it is a very good example of modern poetry. So let us start this beautiful poem, Wind. Wind. Wind comes softly, don't break the shutters of the window. Don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. Wind. Wind comes softly, don't break the shutters of the windows. Don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. So as we can notice, first the poem is in free verse. We can notice the first line is composed in only in 3 lines, while the other line is taking 6 to 7 words, and then the third line 4 words only. Okay, so the poem is starting with the address to the wind. The poet is directly talking to the wind. The poet is directly addressing to the wind and calling to the wind as a human being. That is why we are saying that the complete poem is in personified form, because the wind has been called as a human being by the poet. So the poet is requesting to the wind, O wind, come softly. Addressing to the wind, O wind, come softly. तुम धीरे धीरे आओ या तुम धीरे धीरे बहो. He is actually talking to the strong wind. Strong wind is blowing, a harsh wind is blowing, so he is requesting to that harsh wind, oh dear,
Wind, come softly, blow softly. Don't break the shutters of the windows. जो विंडोज़ के शटर्स हैं उनको इस तरह से मत तोड़ो. डोंट स्कैटर द पेपर्स. अब जैसे क्या होता है, हवा आती है तो जितने भी अगर आसपास जो पेपर्स होते हैं वो उड़ करके बिखर जाते हैं, तो जो पोइट हैं वो विंड को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ओ विंड, तुम इतनी हार्श मत बनो, इस तरह से मेरे पेपर्स को इधर उधर मत बिखेरो. स्कैटर मीन्स टू स्प्रेड, बिखेर देना. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. और इस तरह से बुक्स को गिराकर नीचे शेल्फ पर मत फेंको. तो जैसे विंड आती है ना, तो क्या होता है, चारों तरफ जो चीज़ें होती है इधर उधर हल्की फुल्की जो स्पेशल चीज़ें होती है वो बिखरने लगती हैं. और जैसे जैसे विंड तेज़ होती जाती है तो क्या होता है, जो छोटी मोटी चीज़ें हमारे आमने सामने होती हैं वो उड़ने लगती हैं. या फिर खिड़कियाँ वगैरह ओपन होती है तो क्या होता है, जल्दी जल्दी उसको ओपन होने लगती है, क्लोज़ होने लगती है, हवा में मीन्स उड़ने इधर उधर होने लगती हैं. ओके, सो द पोइट इज़, that is why he is making a request to the wind. Oh wind, please blow down, please don't blow so harshly, just be soft, just come and enter into our world very softly. If we notice here, as earlier I said, there is no rhyming scheme, but poetic device we can notice here. The first poetic device has been used is anaphora. Don't break, don't scatter, don't throw. Here we can notice that all these consecutive lines have been started with the same word, don't. तो जब भी continuous lines same words या same phrases से start होती हैं, वहाँ पर anaphora poetic device का use होता है. ठीक है. So what is the use of, what is the basic purpose of repeating these lines by the poet is that ये repeating lines actually show कर रही हैं कि जो poet हैं वो कितना urge कर रहे हैं, कितना request कर रहे हैं wind को कि ओ wind तुम इतना तेज़ मत बहो जिसकी वजह से हम परेशान हो जाएं. Next lines. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought the rain again. You are very clever at poking fun at weaklings. So now the poet is saying in a little harsh voice, the poet is saying to the wind, there, look what you did. Oh wind, just see, just look what you have done. You threw them all down. You have scattered all around my everything. All the things that I was having with me have been scattered only because of you. मेरे आसपास जितनी भी चीज़ें थी, मेरे पेपर्स, मेरी बुक्स और मेरी बाकी जो चीज़ें थी, वो देखो तुमने किस तरह से इतने स्ट्रॉन्ग बहने की वजह से तुमने इधर उधर बिखेर दी हैं. यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स. तुमने इतना ही नहीं, तुमने मेरी बुक्स के पेजेस तक फाड़ दिए. तुम इतना तेज बह रही हो. यू ब्रॉट रेन अगेन. और बात सिर्फ इतनी ही यहीं पर ख़त्म नहीं हुई है, तुम इतनी तेज बह रही हो कि साथ में अपने बारिश को भी ले आई. यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स. अब वीकलिंग्स जो वर्ड है वो जो पोइट है वो एक्चुअली किससे कनेक्ट कर रहे हैं. ही इज़ कनेक्टिंग द वर्ड वीकलिंग्स विथ ऑल द वीक थिंग्स, ऑल फिज़िकली वीक थिंग्स. यहाँ पर सिम्बॉलिकली भी पोइट बता रहे हैं, लेकिन पहले वो फिज़िकली मेटलिस्टिकली बता रहे हैं कि किस तरह से जो छोटी छोटी जो वीक थिंग्स होती हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं अगर जो ये विंडोज़ होती है उनके जैसे कब्जे अगर हल्के से होते हैं, कमज़ोर से होते हैं, तो जब तेज़ हवा बहती है तो ज़ोर ज़ोर से वो खिड़कियाँ हिलने लगती हैं और ऐसा लगता है कि जैसे टूट जाएंगी. या फिर जो छोटी मोटी चीज़ें जो कि कमज़ोर चीज़ें हम कह सकते हैं, जैसे छोटे मोटे पेड़ पौधे हो गए, छोटे मोटे प्लांट्स हो गए, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग विंड होती है वो उसे क्या करती है, तोड़ देती है. ठीक है. इसी तरीके से जो बादल होते हैं आसमान में बहुत लाइट होते हैं, लेकिन वो जो विंड होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग बहती है कि उन बादलों को भी मजबूर कर देती है बारिश के लिए, है ना. सो द पोइट इज सेइंग देयर, लुक व्हाट यू डिड. अब जो पोइट हैं
क्या है, थोड़ी हार्श टोन में जो विंड है उसे बोल रहे हैं कि देखो देखो तुमने क्या कर दिया, तुमने मेरी सारी चीज़ों को इधर उधर बिखेर दिया, यहाँ तक कि तुमने मेरे बुक्स के पेजेस भी फाड़ दिए, और तुमने इतनी तेज़ बही हो कि जो वो बादल हैं उन बादलों को भी तुमने मजबूर कर दिया बारिश के लिए। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। पोकिंग फन मीन्स मेकिंग फन। तुम बहुत क्लेवर हो, तुम बहुत ही चालाक हो। देखो तुमने क्या किया कि जो चीज़ें कमज़ोर हैं, जो चीज़ें मजबूत हैं, उनका तो तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाई, लेकिन वो बेचारी जो छोटी छोटी कमज़ोर चीज़ें थी उनको तुमने उखाड़ कर फेंक दिया। So in this way we can get a message that how the strong people, how the people who torture the another people can suppress only the people who are weak, can suppress the things only that are weak, but they cannot सप्रेस द स्ट्रॉन्ग पीपल। ठीक है, जिस तरह से जो स्ट्रॉन्ग हवा होती है, तेज़ हवा होती है, वो सिर्फ जो कमज़ोर चीज़ें होती हैं उन्हीं को उखाड़ के फेंक सकती है, उन्हीं को उड़ा करके फेंक सकती है, लेकिन जो मजबूत चीज़ें होती हैं उनका वो कुछ नहीं बिगाड़ पाती। ठीक इसी तरह से जो मजबूत इंसान होते हैं, ठीक है, वो क्या है, कमज़ोर लोगों को ही झुका सकते हैं, लेकिन दूसरे मजबूत लोगों को वो कभी नहीं झुका सकते। ओके, here if we talk about the poetic devices, we can notice the first one is metaphor. The poet is saying you tore the pages of the books, means the poet is comparing the activities of the wind with the activities of a child. जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, क्या करता है, किताबों को उखाड़ के फेंक देता है या मिस्चीवियस कुछ भी एक्टिविटीज़ करता है, तो कुछ किसी भी तरह के एक छोटा बच्चा जो हरकतें करता है, ठीक उसी तरीके की जो हरकतें हैं वो किसकी एक्टिविटी से कंपेयर की गई हैं, विंड की एक्टिविटी से कंपेयर की गई हैं। एंड विदाउट द यूसेज ऑफ द वर्ड एज लाइक एंड सो, दैट इज़ वाई मेटाफर हैज़ बीन यूज्ड इन दिस लाइन। पर्सोनिफिकेशन टू कंप्लीट पोएम में चल ही रही है। द कंप्लीट पोएम इज इन पर्सोनिफिकेशन फॉर्म बिकॉज द पोएट इज टॉकिंग विद द विंड, ओके, एज अ ह्यूमन बीइंग। तो जैसे कि अब उनको डांट रहे हैं कि देयर लुक व्हाट यू डिड, तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि पर्सोनिफाइड, उनको क्या, जैसे कि कोई जीवित प्राणी है, इस तरह से विंड से वो बात कर रहे हैं, इसलिए वो बोल रहे हैं लुक व्हाट यू डिड। वो उसको डांट भी रहे हैं, पहले रिक्वेस्ट कर रहे हैं फिर डांट रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इन सारी लाइन्स में पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हुआ है। ठीक इसी तरह से जब वो बोल रहे हैं यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट द वीकलिंग्स, तो जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है दूसरे बच्चे की मजाक बनाता है, ठीक इसी तरह से जो विंड है वो क्या कर रही है, कमज़ोर चीज़ों का मजाक बना रही है। तो यहाँ पर भी मेटाफर का यूज़ हुआ है। जैसे कि कोई छोटा बच्चा होता है किसी की मजाक बनाता है, ठीक इसी तरह से विंड जो है वो कमज़ोर चीज़ों का मजाक बना रही है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट, फ्रेल क्रम्बलिंग houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling woods, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind god winnows and crushes them all. The poet now is connecting this extract with the previous one. As in the earlier passage, we studied that the strong wind often crushes down only the weak things. In this passage the poet is telling us which are those weak things that the wind god or strong wind try to break down or fall down. Frail crumbling houses, frail means weak, crumbling means to break into pieces. ठीक है, जो टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाए उसको हम क्रम्बलिंग कहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्रम्बलिंग का मीनिंग क्या है, वीक। ठीक है, frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters. The poet is trying to tell us here that those strong gusts of winds can break only the weak things like weak houses, weak doors और weak rafters. ठीक है, जो
घर जिनकी नींव जो होती है वो उतनी मजबूत नहीं होती है, ऐसे घरों को वो जो हवा के झोंके हैं वो गिराने की कोशिश करते हैं। ऐसे दरवाजे जो कि ऑलरेडी बहुत लूज़ हैं, ऐसे दरवाज़ों को राफ्टर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ राफ्टर? बीम्स दैट सपोर्ट द व्हाट वी से रूफ ऑफ द हाउस, जो घर की जो छत होती है या घर को जो पूरा ढांचा होता है उसको जो सपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं, वो बीम करते हैं। तो वो जो बीम होते हैं अगर वो ऑलरेडी कमज़ोर होंगे तो क्या होगा, हवा के झोंके आएंगे और उसे गिरा देंगे, उसे तोड़ देंगे और जिसकी वजह से हमारा घर टूट जाएगा। क्रम्बलिंग वुड्स, क्रम्बलिंग बॉडीज़, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। और इसी तरीके से वो कमज़ोर लकड़ियाँ, कमज़ोर शरीर, यानी फिज़िकली इफ़ यू आर वीक, इफ़ यू आर फेसिंग द स्ट्रॉन्ग विंड, दैट स्ट्रॉन्ग विंड में crush you also down if you are not physically good. In the same way, crumbling lives and crumbling hearts, that means जो कि ऑलरेडी कमज़ोर दिल वाले इंसान होते हैं उन्हीं को क्या है, जो मजबूत लोग होते हैं वो गिरा सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जो कमज़ोर दिल वाले होते हैं वो इन स्ट्रॉन्ग विंड से क्या है, डर जाते हैं, गिर जाते हैं। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। लेकिन जो विंड गॉड होते हैं, हम जो पोइट हैं वो एक्चुअली अब यहाँ पर ये कहना चाहते हैं, वॉट एवर स्ट्रॉन्ग विंड इज़ डूइंग, it is doing exactly correct. The poet is symbolizing wind with the wind god, and he is trying to say because he is a god and he never does anything wrong with us. Whatever he is doing, he is actually doing good because he winnows and crushes them down. Winnows, what is the meaning of winnows? To sort out the things, means it is like a current of wind that actually sort out the वीक थिंग्स। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे गांव में देखा होगा या घरों में भी, जैसे अनाज को हम छानते हैं, ठीक है, तो विनोज का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, सानना। तो उसमें हम जब सानते हैं तो क्या होता है कि जो ग्रेन होती है उस ग्रेन में से जो उसके जो ऊपर से छिलके होते हैं वो क्या होते हैं, वो निकल के दूर होते जाते हैं और जो सिर्फ अनाज होता है वो रह जाता है। ठीक है, तो जो पोइट हैं वो ये कहना चाहते हैं, जो विंड गॉड है वो एक्चुअली जो भी करते हैं सही करते हैं। ही इज़ एक्चुअली ट्राइंग टू पॉलिश यू, he is actually trying to polish you, he is actually trying to crush out all the weakness that are inside you, and slowly you will be very much strong if you are winnowed by the strong gusts of wind, or if you are winnowed by the adversities of your life, okay, calamities of your life. So ultimately the poet is trying to give us a message that if the God is giving you problems again and again, he is actually trying you, he is actually taking your exam, he is actually trying to polish you. Okay, so this is the ultimate explanation of this passage. The other thing the poet is trying to tell us, crumbling lives and crumbling hearts, कमज़ोर दिल वाले जो लोग होते हैं, यहाँ पर क्रम्बलिंग लाइफ से क्रम्बलिंग हार्ट से उन लोगों को भी लिया गया है जो लोग अपनों को खो देते हैं किसी भी परेशानी की वजह से, और उनके वो जो अंदर से वो क्या टूट जाते हैं। जो ऑलरेडी टूट चुके लोग होते हैं उनको, जो लोग होते हैं मजबूत लोग होते हैं, उनको अक्सर दुख पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उनको गिराने की कोशिश करते हैं। तो पोइट जो हैं उन लोगों को मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि आप अंदर से टूट चुके हैं तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग आपको बनाना ही होगा, क्योंकि अगर आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे तो वो जो मजबूत लोग हैं वो आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसी वजह से आपको अपने आप को मजबूत बनाना ही होगा। ठीक है, so this is the explanation of this extract. If we talk about the poetic devices, poetic device very easy. Repetition has been used in this extract, as we can notice. Crumbling word has been repeated again and again. And the second thing, anaphora has also been used here, because the poet is saying crumbling house, crumbling door, crumbling
राफ्टर, यानी कि सेम वर्ड से जो लाइंस हैं, साथ की जो लाइंस है, कंसेक्यूटिव लाइंस जो हैं एक ही वर्ड से स्टार्ट हो रही हैं, तो एनाफोरा का भी यहाँ पर यूज़ हुआ है. So we can say here that the poet is using two poetic devices in the same line. Okay, let's move to the next extract. He won't do what to tell him. So come, let's build strong homes. Let's join the doors firmly, practice to form the body, make the heart steadfast. Now the poet is saying that he is actually addressing to the readers and he is saying he किसको के लिए यूज़ हुआ है, ही एक्चुअली विंड के लिए यूज़ हुआ है. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पर्सोनिफिकेशन डायरेक्टली पोइट ने यूज़ किया है. हालांकि कंप्लीट पोएम डायरेक्ट इसमें पर्सोनिफिकेशन में ही है, लेकिन यहाँ पर ही यानी विंड के लिए इट वर्ड का यूज़ ना करके जो पोइट है ही वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, है ना. तो ही वोंट डू व्हाट टू टेल हिम, जो विंड है वो नहीं करेगा जो आप उसको बताओगे. ठीक है, मैं उसको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ, पोइट कह रहा है, मैं जानता हूँ मेरी बात नहीं सुनेगा, लेकिन अल्टीमेटली जो हम हैं वो स्टेप उठा सकते हैं. हम उन स्ट्रॉन्ग विंड से बचने की कोशिश कर सकते हैं, अपने आप को उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना करके. So come, let's build strong homes. So that is why the poet is saying कि we have to make our home और build our homes strong. हमें अपने घरों को ज़्यादा मजबूत बनाना होगा उन हवा के झोंकों से, ताकि इसी तरह से कैसे भी आकर के वो हमारे घरों को तोड़ ना दे. Let's join the doors firmly, practice to form the body, make the heart steadfast. Now the poet is saying let's join the doors firmly. हमें अपने घरों को, हमें अपने दरवाज़ों को मजबूत बना करके रखना होगा, ताकि इस तरह से जो स्ट्रॉन्ग विंड की जो हवा के झोंके हैं वो हमारे घरों को, हमारे दरवाज़ों को या हमारी किसी भी छोटी मोटी वस्तु को ऐसे ही ना तोड़ सके. हमें अपनी वस्तुओं को खुद संभालना होगा, उन्हें खुद मजबूत बनाना होगा. प्रैक्टिस टू द फॉर्म बॉडी, और इसी तरह से हमें बॉडीली भी स्ट्रांग होना होगा, अपने आप को मजबूत रखना होगा, ताकि कोई भी इस तरह से किसी भी तरीके की जो परेशानी है वो हमें इतनी आसानी से छू ना सके. मेक द हार्ट स्टीडफास्ट, और हमें अपने मन को, सबसे मेन बात, हमें अपने मन को मजबूत बनाना होगा, ताकि हमसे कोई भी ज़्यादा मजबूत इंसान जो है वो हमको तोड़ ना सके, क्योंकि हमें उससे भी ज़्यादा मजबूत बनना होगा. अगर वह इंसान हमें तोड़ने की कोशिश करे तो भी वो हमको कोशिश तो क्या करे, हमको वो छू तक ना सके. ठीक है. सो द पोइटिक डिवाइस, देयर इज़ ओनली वन पोइटिक डिवाइस इन दिस एक्सट्रैक्ट इज़ ओनली पर्सोनिफिकेशन, जहाँ पर जो पोइट हैं वो विंड के लिए इट यूज़ ना करके ही का यूज़ कर रहे हैं. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट. डू दिस एंड दिस विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस. द विंड ब्लोज आउट weak fires, he makes strong fires roar and flourish. His friendship is good, we praise him every day. Now in this concluding extract, the poet is giving us a very beautiful message. The poet is saying that these strong gusts of winds or these problems of our lives, whom we think are our enemies, are actually not our enemies but our friends. Or in fact we must make friends with them, or we must have friendship with them. जो छोटी छोटी मुसीबतें हैं उनको क्या है, उनसे हमें दोस्ती कर लेनी चाहिए, और उनको क्या है अपने सामने आने देना चाहिए, उनसे हमें दोस्ती कर लेनी चाहिए. We must be habitual of facing the challenges of our life. If once we try to face the challenges of our lives ourselves, we get habitual of it,
we feel like these problems are nothing for us and we easily can move on. He makes a strong fire. Now he is giving, the poet is giving a very beautiful example. The poet is saying that the strong gust of wind can extinguish the flame of the matchstick, but it cannot extinguish the huge fire that has taken place in the jungle or forest. जो हवा के झोंके होते हैं वो सिर्फ हल्की सी आग को बुझा सकते हैं, है ना. वीक फायर्स यानी कि जो हल्की फुल्की जो आग की लौ है या लपटें हैं उनको तो बुझा सकते हैं, लेकिन पहले से ही अगर किसी जंगल में भयावह आग लग चुकी है तो वह उसको नहीं बुझा सकते, बल्कि उसको और ज़्यादा भड़का देते हैं, उसको और ज़्यादा बढ़ा देते हैं. सो इन द सेम वे द पोइट इज़ ट्राइंग टू टेल अस दैट if we remain strong, these problems of life will help us to improve. ओके, जिस तरीके से जो जंगल की आग है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है हवा के झोंकों के आने से, तेज़ हवा के झोंकों से आने से, इसी तरीके से मुसीबतें, परेशानियाँ, दुख जो जितने बड़े होंगे उतने ही हम उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे. ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं लाइफ की वो हमको वास्तव में क्या है, हमको इम्प्रूव करने के लिए आई हैं. His friendship is good, we praise him every day. So we must have friendship with such kinds of problems because we praise him every day. We must praise them, we must appreciate them. Thank you God, and we must in fact thanks to our God. We thank you God, you sent so many problems in our life. Only because of these problems we could know our capabilities, our qualities that were hidden inside us. If you had not given us those problems, we won't be able ever to improve and know our own hidden traits or qualities. Okay, so this is the explanation of this extract. There is only one पोइटिक डिवाइस, पोइटिक पर्सोनिफिकेशन तो है ही इसमें पूरा चल रहा है. सेकेंड पोइटिक डिवाइस इज़ अगेन पर्सोनिफिकेशन डायरेक्टली. द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स. जो पोइट है वो बता रहे हैं कि विंड जो होती है वो क्या करती है, आग को बुझा देती है. जस्ट लाइक वो बात कर रहे हैं एज इफ विंड इज़ अ ह्यूमन बीइंग एंड इट इज़ एक्सटिंग्विशिंग एनी फायर. Okay, so in this line and then he makes strong fires roar and flourish. ठीक है, तो यहाँ पर भी वही पोइटिक डिवाइस का यूज़ हुआ है. ही का बार बार यूज़ हो रहा है विंड के लिए, तो हमारा पर्सोनिफिकेशन का ही बार बार यूज़ हो रहा है. ठीक है, so this is the ultimate explanation of the poem. Hope the explanation is clear to you. If you like the explanation, please don't forget to hit the like button and please do share with your friends if they need it. Okay, thank you. Happy learning.